अनियमितता पर कार्रवाई हुई है। अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने कार्रवाई की है। अवैध रूप से शराब बरामद होने पर यह कार्रवाई की गई है। कई वित्तीय अफसरों पर भी कार्रवाई की गई है। डिस्टिलरी समेत सभी संबंधित लोगों पर अब एफआईआर दर्ज हो गई है। सहारनपुर मंडल उपकारी आयुक्त राकेश कुमार निलंबित कर दिए गए हैं। इसके अलावा डिस्टिलरी प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त निलंबित हुए हैं। 4 गोदामों के आबकारी निरीक्षक भी निलंबित किए गए हैं। सहारनपुर, कानपुर, उन्नाव, बदायूं के देसी शराब के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। सहायक आबकारी आयुक्त रामपाल भी निलंबित हुए हैं। सहारनपुर, उन्नाव, बदायूं, संभल, कानपुर के आबकारी निरीक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। और आज जन औषधि दिवस है। इस मौके पर सीधे आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय पूर्वक स्वागत करते हैं। डिजिटल माध्यम से हमारे साथ उपस्थित केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के मुख्यमंत्री श्री, जनप्रतिनिधि, देश भर से जुड़े लाभार्थी, जन औषधि केंद्र संचालक, जन औषधि मित्रगण तथा अन्य सभी महानुभावों और मेहमानों का भी हम स्वागत करते हैं। अब माननीय मंत्री श्री रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय श्री DV सदानंद गौड़ा जी से अनुरोध है, अपने ओपनिंग रिमार्क्स के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। Honorable Prime Minister, sir, other central and state ministers, MPs, legislators, and other dignitaries who are participating in this mega event, Namaskar. The Ministry of Chemical and Fertilizers is highly indebted for your gracious presence to today's this mega event, sir. Sir, under your leadership, government is bringing silent revolution in the health sector since 2014. There has been perceptive improvement in accessibility of common men, including poor people, to affordable health care. Now there are schemes providing for free treatment for in hospitals, up to 5 lakh under Ayushman Bharat Yojana, adequate care for nutrition for pregnant women under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, clean water to the people under the Har Ghar Jal Mission, bringing behavioral change towards the cleanliness under Swachh Bharat Mission, universal immunization for children under Indradhanush Mission, strengthening health infrastructure by construction of 10 new AIIMS and wellness centers, low cost, high quality generic medicine under PM Jan Aushadhi Bharatiya Jan Prayojana. Sir, the importance that is given by you shows in the last budget that allocation of about 2.23 lakh crores for the health sector, which is about 137% higher than the current fiscal year, sir. Never before the health sector was given such an importance, and the present government under your visionary leadership has did it, sir. Sir, you have been pivotal in bringing this Pradhan Mantri Bharatiya Pariyojana to where it stands today. We can go back, sir. We can see the number of Jan Aushadhi Kendras in 2014 was mere 86, sir. The strategic interventions by you and the current government gave the required impetus to the scheme. As a result, today 7,499 Jan Aushadhi Kendras are functional across the state. All the districts of the country has been covered, sir. And today you are going to inaugurate one more Jan Aushadhi Kendra, which takes the tally to, sir, 7,500, sir. The product basket is also like that, sir. In the year 2014, only 131 products were in the basket, sir. Today, 1,449 medicines and 204 surgical items are included in the basket, sir. The total turnover, sir, a mega jump has been taken, sir. See, in 2004, it was mere 7.29 crores, sir. In the year 2013-14, today it has gone to 6,000 crores during the year 2021, sir. Sir, the scheme has a cascading effect on the citizens, sir. Approximately 1 to 1.25 crore people are taking medicines from Jan Aushadhi Kendras every month, sir. कानपुर से एक अहम खबर, सामूहिक विवाह के खर्च की भी अब जांच कराई जाएगी। 200 जोड़ों की शादियों में हुए खर्च की अब जांच होगी। शादी अनुदान फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद ये सतर्कता बरती जा रही है। शादी अनुदान की जांच के बाद सामूहिक विवाह खर्च की जांच की जाएगी।
बड़ी खबर, कुछ गड़बड़ियों के सबूत मिले थे। शादी अनुदान फर्जीवाड़ा सामने आया था और उसके बाद ये एहतियात बरती जा रही है कि 200 जोड़ों की जो शादियां हुई हाल ही में, जिसमें अनुदान का उपयोग किया गया, उस खर्च की अब जांच करवाई जाएगी। कानपुर में हुए सामूहिक विवाह खर्च की भी जांच होगी। कुल मिलाकर 200 जोड़ों की जो शादियां हुई थी, उसमें जितना खर्च आया था उसकी जांच की जाएगी। शादी अनुदान की जांच के बाद सामूहिक विवाह खर्च की जांच होगी। इसी से जुड़ा एक फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसके बाद अब ये सतर्कता बरती जा रही है कि इस तरह के आयोजन में होने वाले खर्च की अब जांच कराई जाए। शादी अनुदान फर्जीवाड़ा सामने आया और अब उसकी जांच के बाद विवाह खर्च की जांच होगी। कुल मिलाके जो 200 लोग शादी के बंधन में बंधे थे, उनके लिए जो बड़ा आयोजन किया गया था और जिस प्रकार खर्च हुआ था, उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी ईमानदारी बरती गई, इस मामले की जांच की जाएगी। उधर कृषि कानूनों के विरोध में 3 जगह आज महापंचायत होने जा रही है। एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर, दूसरी तरफ मेरठ और बागपत में भी सियासी पंचायत होने जा रही है। मेरठ के कैली गांव में प्रियंका गांधी महापंचायत करेंगी। बागपत के टिकौली गांव में जयंत चौधरी की पंचायत है। तो गाजीपुर बॉर्डर पर आज जो आंदोलनकारी किसान हैं, उनकी पंचायत होने जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर के अलावा पश्चिमी यूपी में 2 बड़े राजनीतिक दल, एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ आरएलडी। प्रियंका गांधी मेरठ के सरधना में महापंचायत करेंगी दोपहर 12 बजे। कैली गांव में हनुमान मंदिर के पास की महापंचायत होगी। 27 जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में एक श्रृंखला का ये हिस्सा है। पश्चिमी यूपी में जो 27 कार्यक्रम आगे और होने जा रहे हैं, उसी का ये एक हिस्सा है। तो दूसरी तरफ बागपत में कृषि कानूनों के विरोध और किसानों पर अत्याचार के खिलाफ आरएलडी के आह्वान पर आज किसान महापंचायत होगी, जिसे आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे ढिकौली गांव के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचेंगे और पंचायत को संबोधित करेंगे। अगली खबर अमेठी से, एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर से चंद कदम की दूरी पर यह हत्या हुई है। अज्ञात बदमाशों ने इस युवक को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड की वजह से फिलहाल वहां पर सनसनी फैली हुई है, लेकिन अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के भावलपुर गांव का यह मामला है, जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना भी उसके घर से चंद दूरी पर हुई है कि प्लानिंग के साथ बदमाश वहां पर पहुंचे, उसको गोली मारी, मौत के घाट उतारा और वहां से फरार हो गए। हालांकि इस हत्याकांड की वजह क्या है, क्यों इस युवक को गोली मारी गई, वो अभी साफ नहीं हो पाया है। संग्रामपुर थाने से जुड़ा यह मामला है, जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर से कुछ ही कदमों की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। अज्ञात बदमाशों ने इस युवक को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि बदमाश अभी भी फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अगली खबर हाथरस से, बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर है। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर इस आग को बुझाया गया, लेकिन इस दौरान फैक्ट्री में रखा हुआ सारा सामान जलकर आग में खाक हो गया। हाथरस से ये बड़ी खबर, 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर इस आग पर काबू पाया गया। ये आग कितनी भीषण तरीके से लगी हुई थी, वो आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 3 घंटे लग गए फायर फाइटर्स को इस आग पर काबू पाने में, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर खाक हो गया। बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी और यही वजह भी थी कि ये तेजी से फैली, क्योंकि अंदर इस प्रकार का सामान रखा हुआ था जो ज्वलनशील था या जिनसे आग फैल सकती थी। सब कुछ जलकर खाक हो गया और पूरी फैक्ट्री किस तरह आग की चपेट में आ गई, वो आप तस्वीरों में देखिए। गनीमत रही, किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस फैक्ट्री के अंदर रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त फायर फाइटर्स को लगा इस आग को बुझाने में। अगली खबर रायबरेली से, रेल कोच कारखाने की सेल शॉप में आग लग गई है। मॉडर्न रेल कोच कारखाने, आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। सेल शॉप में दक्षिण कोरिया की सिस कंपनी ऑटोमेटिक मशीन की जिंक में चल रहा था सेल बनाने का काम और आग लगने से लाखों का नुकसान हो चुका है। रेल कोच में आग लगने से लाखों के नुकसान की खबर है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और उस आग को बुझाने के काम में जुट गईं। रायबरेली से ये बड़ी खबर, रेल कोच कारखाने की
सेल शॉप में आग लगने से हड़कंप मच गया। रायबरेली में रेल कोच कारखाना है। यहां पर रेल के कोचेस यानी कि डब्बे तैयार किए जाते हैं और उसी में ही आग लगने से लाखों के नुकसान की खबर आ रही है। पंकज से इस पर अपडेट लेते हैं। पंकज, बताइएगा क्या जानकारी आपके पास है? जी, रायबरेली में एक मॉडर्न रेल कोच कारखाना है जहां एक सेल शॉप होती है, जिसमें एक दक्षिण कोरिया की कंपनी है, सिस कंपनी है। वहां पर ऑटोमेटेड मशीन का जो जिंक वाला पोर्शन होता है वहां पर काम चल रहा था। वहां पर अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी का पूरा माहौल हो गया। लोग वहां से भागना शुरू कर दिए। हालांकि सूचना तत्काल दी गई, क्योंकि लालगंज में ही फायर ब्रिगेड की पूरी टीम रहती है। वहां से फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और उसको आग बुझाने की पूरी कोशिश में वो लोग लगे हुए हैं। लेकिन सबसे खास बात की, चूंकि वहां पर मशीनें हैं, वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें जो बाहर से आई हुई हैं वो मशीनें हैं, और वहां पर कुछ केमिकल भी रखे हुए थे, जिसकी वजह से वहां पर दगने की भी आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी वहां पे कि आग बुझाई जाए वहां पे। और हालांकि अभी तक जो आग लगने का कारण है वो अभी अज्ञात है, उसकी जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन पूरा जो सिस्टम है वो पूरा लगा हुआ है कि उसको आग बुझाया जाए, आग आगे ना फैलने पाए, क्योंकि एक ऐसा पूरा वहाँ प्लांट है जहाँ पर रेल के जो डिब्बे हैं वो बनते हैं, वहाँ पर रेल कोच जो होता है। बिल्कुल, और इसी के कारण जो है ये आग यहाँ पर लगी है और तेजी से ये फैलती भी चली गई। लाखों के नुकसान का आकलन फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया पंकज। अगली बड़ी खबर लखनऊ से। जन समस्याओं से जुड़ी कार्रवाई का मूल्यांकन लगातार जारी है। यूपी के जिला अधिकारियों की परफॉर्मेंस की रैंकिंग जारी है। यूपी के बड़े जिला अधिकारियों की परफॉर्मेंस में सुधार नहीं। लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज की परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं। बड़े शहरों को पछाड़कर छोटे शहर जन सुनवाई में आगे निकल गए, जैसे अमेठी, कासगंज, गाजियाबाद, चित्रकूट समेत 10 शहरों की परफॉर्मेंस में पहले से सुधार आया है। 2 बड़े जिला अधिकारियों की परफॉर्मेंस में सुधार नहीं। 2 बड़े शहरों को पछाड़कर कुछ छोटे शहर उनसे ऊपर आ गए हैं और ये सब कुछ जन समस्याओं से जुड़ी कार्रवाई को ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया गया है। यूपी के डीएम की जो परफॉर्मेंस है उनकी रैंकिंग जारी की गई है और खास बात यह कि बड़े जिला अधिकारी कुछ ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस में पहले से ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आया है। बड़े शहरों को पछाड़कर कुछ छोटे शहर इस मामले में ऊपर जरूर आ गए हैं। अनुभव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुभव, बताइएगा, खबर ये कि कुछ जिला अधिकारियों की परफॉर्मेंस में सुधार नहीं, कौन से वो जिले हैं, और कुछ छोटे जिलों की परफॉर्मेंस अच्छी है बड़े जिलों के कंपैरेटिव? देखिए, बिल्कुल, ये जो जन सुनवाई पोर्टल है इसकी हर महीने एक रैंकिंग होती है, इसका एक फीडबैक लिया जाता है और उसी के आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। इस बार जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें जो बड़े शहर हैं, आप लखनऊ हो, आगरा हो, अलीगढ़ हो, प्रयागराज, इनकी परफॉर्मेंस में सुधार नहीं आया। यानी लास्ट मंथ जो इनका रैंकिंग थी वही रैंकिंग रही और कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ। जबकि जो छोटे शहर हैं, चाहे अमेठी हो, कासगंज हो, गाजियाबाद, चित्रकूट, ये जो 10 शहर है इन्होंने अपने रैंकिंग में सुधार किया है। ये रैंकिंग इस आधार पर होती है कि जन सुनवाई पोर्टल पर जितनी भी शिकायतें आती हैं उनका कितने वक्त में निस्तारण होता है। इसके अलावा कुछ और जो इसके पॉइंटर्स हैं उसी आधार पर ये रैंकिंग होती है। तो उस रैंकिंग में अभी जो लखनऊ हो या फिर प्रयागराज हो, ये कहीं ना कहीं पीछे हैं और जो छोटे जिले हैं वो इन जन सुनवाइयों को तेजी से निपटा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण बात यह, जन समस्याओं से जुड़ी कार्रवाई का मूल्यांकन हुआ और उसमें किस जिले ने क्या स्थान बनाया उसकी रैंकिंग भी जारी की गई है। उधर काशी में एक बड़ा बदलाव हो गया है। विश्वनाथ कॉरिडोर का सपना जो प्रधानमंत्री मोदी ने देखा था वो धरातल पर उतरा तो आस्था से सराबोर वो तस्वीर भी निकल आई जो आपको काशी आने पर मजबूर कर देगी। देखिए काशी में शिवलोक साक्षात। काशी में भक्ति का भव्य कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ के दर पर हर हर गंगे। काशी में सबसे बड़ा काया पलट, एबीपी गंगा पर शिवलोक साक्षात। ये नगरी धर्म की नगरी है, ये धरा मोक्षदायिनी है, ये नगरी बाबा विश्वनाथ की नगरी है और इसी धरा पर एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में हो रहे इस परिवर्तन की पहली झलक आपको एबीपी गंगा पर दिखाने जा रहे हैं, जो आपको बाबा की नगरी की ओर आकर्षित करेगा। अब तक जो वाराणसी गए हैं उनके लिए बाबा विश्वनाथ धाम में
हाजिरी लगाना और मां गंगा के पावन जल को स्पर्श करने के लिए लंबा समय व्यतीत करना होता था। लेकिन आस्था के इस धाम में होने जा रहा बड़ा परिवर्तन, जिसमें काशी में मां गंगा के सीधे दर्शन होंगे। देव अधिदेव महादेव की नगरी में भोले का धाम यानी श्री काशी विश्वनाथ धाम मूर्त रूप ले चुका है। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अथक प्रयास अब धरातल पर उतर आया है, जहां एक व्यूइंग गैलरी बनकर तैयार हो चुकी है। इस गलियारे में खड़े होकर बाबा के दरबार से ही मां गंगा के दर्शन सहज और सरल हो जाएंगे और साक्षात बाबा के दरबार तक मां गंगा की उपस्थिति संभव हो पाएगी। महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की तस्वीर कैसे होगी, हम आपको एबीपी गंगा के माध्यम से ये तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। हम इस वक्त गंगा के घाट पर मौजूद हैं और यही वो रास्ता है जहां से जो भक्त हैं वो कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे। आप देखिए, ये बिल्डिंग जिसे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहा जा रहा है वो अब मूर्त रूप लेने लगी है, यानी अब कॉरिडोर अपने मूर्त रूप में आने लगा है। बदली हुई तस्वीर इस बार भक्तों को दिखाई देने वाली है और इस बदली हुई तस्वीर से बाबा के दर्शन का अनोखा सुख भी मिलने वाला है। दरअसल काशी में बन रहे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत बनने वाले इस गलियारे ने भक्तों की भावनाओं को नया आयाम दिया है, जिसमें 2021 तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा, जहां बाबा के धाम से ही मां गंगा के दर्शन सुलभ हो सकेंगे। श्री काशी विश्वनाथ सुंदरीकरण विस्तारीकरण परियोजना धीरे धीरे अपना स्वरूप ले रही है। वर्तमान में लगभग हम 42-43% कार्य हमारा हो चुका है और लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे इश्यूज़ को सॉल्व करके डे बाय डे उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तेज़ी से इसको प्रगति कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य इसको अगस्त 2021 तक पूरा करने का है। अगर चूँकि पिछले महामारी को देखते हुए एक आध माह का विलम्ब होगा, परंतु हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि समय पर पूरा करें। दरअसल बाबा विश्वनाथ धाम में परिवर्तन की बयार लाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। बाबा के धाम से लेकर मां गंगा के तट के बीच पड़ने वाली गलियों के जाल को खत्म किया जा रहा है। इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। बाबा के धाम से होंगे मां गंगा के दर्शन। 50,000 स्क्वायर मीटर को किया गया चिन्हित। पश्चिमी यूपी में 3 महापंचायतें होने जा रही हैं। एक महापंचायत गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान करने जा रहे हैं और उस बीच राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। 9 तारीख में फिर यहीं रहेंगे और 10 तारीख में फिर बलिया चले जाएंगे। ट्रेन से सफर कर रहे, रात में सफर करेंगे गाड़ी से, दिन में यहाँ पर रहेंगे, फिर मीटिंग, फिर दिन में यहाँ, फिर मीटिंग। हाँ, थैंक यू। तो किसान आंदोलन का 102वां दिन है आज और गाजीपुर बॉर्डर पर जो महापंचायत होने जा रही है उससे पहले राकेश टिकैत बता रहे थे कि नरेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं वो आज यहां पहुंचने वाले हैं और किस तरह अलग अलग जिलों में जाकर जो है वो समर्थन जुटा रहे हैं। तो इस खबर से जुड़ी अपडेट आगे भी हम आप तक पहुंचाएं, लेकिन उससे पहले नोएडा में एक छात्र की सुसाइड से हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर हमें मिल रही है। 15वीं मंजिल से कूदकर एक छात्र ने खुदकुशी कर ली है। कल सुबह छात्र ने 15वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी और उसके परिवार वालों का दावा है कि सांवला होने से वो परेशान था। वो अपने रंग को लेकर परेशान रहता था और अक्सर परिवार के सदस्यों से शिकायत करता था। छात्र के माता पिता अलग अलग रहते हैं। इस एंगल से भी मामले की जांच की जा रही है। अभी किसी ने किसी तरह की तहरीर नहीं दी है, लेकिन पुलिस अपने लेवल पर इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।